Position 2, 3, and 4. As you can see in the structure, position 2, 3, and 4. You cannot substitute any functional group over here. Okay. Secondly, the acidic group at position 3 must not be removed as it's the part of the pharmacophore, so it has to be remain as it is. And it can be confirmed by the points that the acidic group or the ketone group at position 3 and 4 can't be substituted. कोई और ग्रुप यहाँ नहीं लगाना है. ठीक है? Is it clear? Then position 3 and 4. These are 3 and 4. These points are responsible for binding with DNA gyrase, and so once the DNA gyrase, that is topoisomerase 2 enzyme, is inhibited, so it means the superhelical structure will remain there, and therefore it will cause the death of the cell. Then position 5, it acts against gram-positive bacteria. Now come to position 7 and 8. The antimicrobial activity is because of position 7 and 8. ठीक है? अच्छा. As you all know, in case of ciprofloxacin and penicillin, the first two generations, you must have studied कि भाई third and fourth generation में आके Pseudomonas aeruginosa के against इनकी activity start हो जाती है. Similarly here, after the addition of fluoro group at position 6, it was found that these quinolones were active against Pseudomonas aeruginosa. ठीक है? चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ. यहाँ पर 7 or 8. 8th position पे a halogen is attached. Normally, in most of the cases, a fluoro or a chloro group is attached at position 8. ठीक है? But the new class fluoroquinolones, in fluoroquinolones there must be a fluoro group at position 6. ठीक है? In certain compounds, addition of piperazine and 3-amino pyrrolidine groups were attached, and those compounds showed activity against Pseudomonas aeruginosa. Pharmacokinetic profile are controlled by position 7 and position 1. ठीक है? After the addition of fluoro group at position 6, there was a wide increase in the antibacterial activity of the compounds. ठीक है? उसके बाद जरा ये structures देखें. In most of the structures, you can see that mostly all of them are fluoroquinolones with the fluoro group at position 6. In some compounds, instead of fluoro group at position 8, there is chloro group, as in case of clinofloxacin. ठीक है? उसके बाद क्या हुआ था? It was found that addition of an
substitution of an additional ring at position 1, that is at nitrogen, which is at position 1, the activity was found to be increased. नहीं बेटा, हेलोजन का position 8 पे it was found कि fluoro group must be at position 6, but if you will place an additional halogen at position 8, the activity, the antibacterial activity will be increased. ठीक है, तो इसलिए पोजीशन 8 पे एडिशनल हैलोजन जो है वो लगाया गया था, लेकिन यहाँ एज इन केस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स 6th पोजीशन पे आपके पास सिर्फ फ्लोरो ग्रुप होना चाहिए, बट एट 8th पोजीशन यू कैन प्लेस ईदर फ्लोरो और क्लोरो ग्रुप. ठीक है, फिर सेकेंडली this is activity. नहीं हुआ ये था कि देखो, just have a look on the last point. Compounds having halogen at position 8 have the highest incidence of phototoxicity. ठीक है, इस पॉइंट को जरा सा सही करना है मुझे. While those having amino or methoxy group have the lowest phototoxicity. Just 6th position पे halogen था, that is fluoro group था. Then another halogen was attached at position 8. लेकिन after introduction of another halogen at position 8, it was found that the compound was showing the adverse effect. कौन सा adverse effect आने लग गया था? Phototoxicity का. So in order to remove that adverse effect, उस adverse effect को हटाने के लिए what did they do? They substituted the fluoro group with another groups like methoxy. सही है? Fluoro group was showing phototoxicity adverse effect. This adverse effect was faced by all the compounds, most of the compounds where a halogen was placed at position 8. Are you getting my point? सही है, एक बार फिर सुन लो. सबसे पहले क्विनोलोन्स आए थे, देन द फ्लोरोक्विनोलोन्स किस तरह के? फ्लोरो ग्रुप वाज अटैच्ड एट पोजीशन 6. आफ्टरवर्ड्स another halogen was attached at position 8. 8th position पे chloro and sometimes fluoro group was attached, but it was observed that all those compounds having 2 halogens were showing the adverse effect. कौन सा adverse effect सबसे ज्यादा आ रहा था? Phototoxicity. तो फोटोटॉक्सिसिटी का एडवर्स इफेक्ट हटाने के लिए 8th पोजीशन पे हेलोजन को हटा दिया गया और वहां पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया गया, बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप द इंसिडेंस ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी वाज रिड्यूस्ड. क्लियर हो रहा है? अब क्लियर है? SE means methoxy reduces. ये SE बेटा कहकशां, व्हाट डू यू मीन बाय SE? अरे भाई जो सवाल पूछ, साइड इफेक्ट, अच्छा सॉरी, हाँ साइड इफेक्ट फोटोटॉक्सिसिटी, जो एक एडवर्स इफेक्ट फोटोटॉक्सिसिटी आ रहा था, उसे हटाने के लिए सेकंड हेलोजन हटा दिया गया. ठीक है, सेकंड हेलोजन हटा दिया गया तो उसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी का जो साइड इफेक्ट था वो हट गया वहां से, यानी कि देयर वाज नो इंसिडेंस ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकंड हेलोजन. यहां तक का क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलो. इसके अलावा और क्या पता चल गया है? तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स आने से ज्यादा हेलोजन गिव प्रोडक्टिव आल्सो गिव साइड इफेक्ट. हाँ बिल्कुल, दूसरा हेलोजन आके उसने एक्टिविटी तो इंक्रीज की थी, लेकिन साइड इफेक्ट भी आ गया था, फोटोटॉक्सिसिटी. आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको याद हो, कि अक्सर ड्रग्स में जहां आप फ्लोरो ग्रुप अटैच करते हो वहां फोटोटॉक्सिसिटी का एडवर्स इफेक्ट जरूर आता है. इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ एंटी मलेरियल्स में भी हमने देखा था. ठीक है, उसमें भी फ्लोरो ग्रुप लगाने के बाद हमारे पास
वो आ रहा था, एक फोटोटॉक्सिसिटी का एडवर्स इफेक्ट आता है। तो फ्लोरो ग्रुप समटाइम्स गिव गुड, बहुत ही एफिकेशियस वो दे देता है, ड्रग दे देता है अपना अटैच रखने के बाद, लेकिन या तो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, और कभी कभार एक से ज्यादा जब लग जाते हैं फ्लोरो, तो वो फिर फोटोटॉक्सिसिटी का एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या आ जाता है, एक बार और चीज देख लें। अच्छा, पाइपैराजीन एट पोजीशन 7। ठीक है, अब ये देख लो, इसमें टोसा नहीं है, है ना, है ना। अच्छा, अब फिर क्या हुआ था, 7th पोजीशन पे, नॉर्मली 7th पोजीशन पे या तो 5 मेंबर रिंग या पाइपैराजीन, पायरिडीन, पाइपैराजीन मुख्तलिफ लगाए गए हैं। तो ये जो चीज देखी गई थी वो ये थी कि द एक्टिविटी was also improved by the addition of a piperazine ring at position 7, as in case of tosofloxacin, क्लिनाफ्लॉक्सासिन। सही है। अब अगर आप कंपेयर करो क्लिनाफ्लॉक्सासिन और टॉक्सोफ्लॉक्सासिन को, तो क्लिनाफ्लॉक्सासिन की एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी टोसोफ्लॉक्सासिन की है। और क्यों? तो यहाँ से आप यू कैन इजीली जज व्हाई, बिकॉज ऑफ द क्लोरो ग्रुप। क्लोरो ग्रुप इज गिविंग phototoxicity, and after the removal of this chloro group, the incidence of phototoxicity was reduced. Similarly, in case of norfloxacin, ciprofloxacin, यहाँ आप देखें, there is no halogen at position 8, इसलिए फोटोटॉक्सिसिटी के इंसिडेंस इतने ज्यादा नहीं होते। लीवोफ्लॉक्सासिन पर आ जा, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन पर आके इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था। तो लीवोफ्लॉक्सासिन ने प्रूव किया कि इट इज अ बेटर ड्रग एज कंपेयर टू द प्रीवियस ड्रग्स, गेटी एंड मॉक्सी। इनका प्लस पॉइंट क्या था कि मिथॉक्सी ग्रुप वाज अटैच्ड। ठीक है, पायरिडीन, पाइपैराडीन ये लगाए गए थे, तो साथ में मिथॉक्सी ग्रुप लगा था। तो अब तक फॉर एन एक आइडियल, अगर आपको कहेंगे कि व्हाट कैन बी एन आइडियल फ्लोरोक्विनोलोन, an ideal fluoroquinolone will be when it will have a fluoro group at position 6, a methoxy group at position 8, a pyridine at position 7, ठीक है, plus there should be no more than one halogen attached in the structure. समझ आ रहा है? हाँ, रिपीट कर देती हूँ, सुन लो बेटा, एक बार दोबारा सुन लो। For those students who want me to repeat, what should an ideal fluoroquinolone have? जी बेटा, वही मैं बता रही हूँ, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर सुन लें। फ्लोरोक्विनोलोन, आइडियल फ्लोरोक्विनोलोन, सही है। अच्छा, आइडियल फ्लोरोक्विन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द जनरल स्ट्रक्चर। इस जनरल स्ट्रक्चर को लेके हम डिस्कस करते हैं, सही है। अकॉर्डिंग, अगर ये जनरल स्ट्रक्चर है, दैट इज देयर शुड बी एन एसिडिक ग्रुप एट पोजीशन 3, there should be a ketonic group at position 4. You should not attach any other group at position 2, 3 and 4. ठीक है, उसके बाद पोजीशन 1 पे हाँ कुछ अटैचमेंट्स हो सकती हैं, यू कैन अटैच एन एरोमेटिक रिंग। नाउ पोजीशन 8 पे हेलोजन पहले बताया गया था, बट देन यहाँ क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स लगाए जा सकते हैं। पोजीशन 6 पे यू मस्ट हैव अ फ्लोरो ग्रुप, सही है। उसके बाद पोजीशन 7 और 8 रह जाती है, पोजीशन 7 एंड 8। पोजीशन 8 पे
if you will attach a halogen, then of course the antibacterial activity of the compound will increase, but simultaneously there will also be an adverse effect, that is phototoxicity. आपको दूसरा हेलोजन जब लगाएंगे, that is already a placed the fluorogroup at position 6, position 8 पे अगर आप दूसरा हेलोजन लगा रहे हो, तो of course you will get a very better compound, but with +1 adverse effect, और वो adverse effect होगा phototoxicity. So in order, अब आप यहाँ पर compromise आपने करना है, आप इफेक्टिवनेस उसकी इतनी रखना चाह रहे हैं, लेकिन फोटो उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है उसको हटाना चाह रहे हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हटाने का तरीका ये है कि यू मस्ट रिमूव अनदर द सेकंड हेलोजन व्हिच यू हैव प्लेस्ड एट पोजीशन 8, और उसकी जगह यू कैन ऐड मिथॉक्सी ग्रुप. हाँ, 8 पोजीशन पे हेलोजन साइड इफेक्ट इंक्रीज होता है, राइट? तो इसलिए 8 पोजीशन पे substitution of methoxy group will be perfect. सही है, as it will reduce या diminish the adverse effect. Which adverse effect? Phototoxicity. समझ आ रहा है? फिर attachment of an aromatic ring at position 1. ठीक है, at position 1 will also give a more better compound. अब यहाँ क्या चीज समझ में आ रही है? अब यहाँ इस चीज पे जरा सा गौर करें आप लोग. हमने पोजीशन 6 पे फ्लोरो ग्रुप लगाया तो एक्टिविटी इंक्रीज हुई, पोजीशन 8 पे फ्लोरो ग्रुप लगाया, मजीद एक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन एडवर्स इफेक्ट आ गए. नाउ इन केस ऑफ टोसोफ्लॉक्सासिन यू हैव प्लेस्ड एन एरोमेटिक रिंग एट पोजीशन 1 हैविंग 2 फ्लोरो ग्रुप्स. अब यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर वही बात आ जाती है जो मैं इस दिन बता रही थी, जो मैं हैंड्स इक्वेशन और फ्लैट ट्रैक प्लॉट की बात कर रही थी, कि while drug designing what your people are doing, आपने ये देखना होता है ड्यूरिंग ड्रग डिजाइनिंग जो होता है, मैं पहले भी बताया था, जो 20 साल लग जाते हैं एक ड्रग को बनाने में, तो हो क्या रहा होता है वहां? ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू अटैच वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, उसने एक्टिविटी दी. नाउ यूल प्लेस, अब देखा आपने आपने मिथाइल ग्रुप देखा, मिथाइल ग्रुप लगाया, एक्टिविटी आई. आपने क्लोरो ग्रुप लगाया, देखा हाँ एक्टिविटी आ रही, लेकिन इंक्रीज एक्टिविटी आ रही है. अच्छा सही है, अब मैं ये करता हूँ कि मैं 2 क्लोरो ग्रुप लगा देता हूँ, लेकिन आफ्टर अटैचिंग 2 क्लोरो ग्रुप यू फाइंड कि भाई नाउ the activity is not increasing in the way which we were expecting. So what is the other option? Now you will change the position of the second chloro group. अब second chloro group की position change करो, ऑर्थो पे था तो पैरा पे लगाओ. What is happening now? Still it is not giving more, it's not being more efficacious. तो अब क्या होगा? इसका मतलब है सेकेंडरी वो क्लोरो ग्रुप काम नहीं कर रहा है. नाउ इट मींस एक क्लोरो लगा दिया, कोई दूसरा ग्रुप लगाएं. सही है, दिस इज व्हाट, ये जो पूरा ये आपकी टॉपलेस स्कीम इस तरह चल रही है, आप एक एक ग्रुप लगा के चेक करते हैं. सिमिलरली हियर इन केस ऑफ टॉक्सोफ्लॉक्सासिन, एक हेलोजन लगाया था, उसकी एक्टिविटी आई, सेकंड हेलोजन लगाया तो उससे एक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन फोटो टॉक्सिसिटी का एडवर्स इफेक्ट आ गया. उसके बाद जब टॉक्सोफ्लॉक्सासिन में एन एरोमेटिक रिंग वाज अटैच्ड, तो टू द एरोमेटिक रिंग 2 fluorogroups were attached, and these fluorogroups were found to be beneficial for the activity. समझ आ रही है बात? अब क्लियर हुआ है कुछ? क्लिनाफ्लॉक्सासिन के मुकाबले में इसकी एफिकेसी ज्यादा थी बेटा. हाँ, एडवर्स इफेक्ट थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन क्लोरोग्रुप की वजह से, दूसरा जो क्लोरोग्रुप था. हाँ बेटा, अब बताओ. एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? आगे चले. अच्छा जी, एरोमेटिक रिंग जी बेटा, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग ना एक बार जरा ये देख लो इसका एस, मैं भी चाह रही हूँ कि एस को मुश्किल ना बनाया जाए, एस इस तरह का हो
इस उसी वक्त याद हो जाए, उसी वक्त समझ में सारी बात आ जाए। ठीक है, मैं बार बार ऐसे आर के इसलिए कर रही हूँ, हार्मफुल बट थ्रू विद एरोमेटिक ग्रुप। यस बेटा, एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ताकि जो जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहे वो हो जाए। सही है। पहली बात मैंने बताई थी कि पोजीशन 1 2 3 4 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद द डीएनए गाइरेज। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, डीएनए गाइरेज के साथ होते भी है। 3 4 2 3 4 पे कोई अटैचमेंट नहीं करनी, चलो ये भी समझ में आ जाता है। 1 2 3 4 तो ओवरऑल डीएनए गाइरेज के साथ वो है, फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी के लिए आते हैं। ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा, अब आगे शुरू होता है 4 के बाद से ना। 7 और 8, असल में 7 और 8 पोजिशन जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो है इसकी उसके लिए है। 6 7 8 बेसिकली 6 7 8 तीनों पोजिशन जो है वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को देख रही हैं। तो इसलिए यहाँ जो भी अटैचमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि एज एन एंटीबायोटिक आपका फ्लोरोक्विनोलोन कैसा काम करेगा। 6 7 8 पोजिशन ये डिसाइड करती है। ठीक है, अच्छा, अब पता क्या चला है, it has been observed that improvement in absorption and activity can be achieved by making modification at position 6 and 7। अब 6 पोजीशन पे तो कर दिया, फिक्स हो गया। जो एक नई क्लास आ गई थी फ्लोरोक्विनोलोन्स के नाम से, एक नई क्लास आ गई थी जब आपने फ्लोरो ग्रुप लगाया था पोजीशन 6 पे, ये तो 6 का तो हो गया मसला सॉल्व। ठीक है, अब क्या हुआ था, पाइपेराजिनाइल एंड 3 अमाइनो पायरो Lidinyl group substitution at position 7 enhances the activity against Pseudomonas aeruginosa। सही है। अब 6th और 7th पोजीशन की बात हो रही है। देखो, अभी जो रिंग्स लगाए गए थे 7th पोजीशन पे, इनसे एक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो जो चीजें जिससे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी और कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट इतना कोई किसी भी किस्म का ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा था जो जो बहुत इरिटेटिंग हो। हल्के देखो, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स के साथ आते हैं। सही है, जिन्हें हैंडल किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम आ रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो जाहिर है वो फिर अलार्मिंग होता है। लेकिन इट वाज फाउंड के अटैचमेंट ऑफ रिंग्स एट पोजीशन 7 गिव बेटर कंपाउंड्स। ठीक है, चाहे वो पैरोलिडीन हो रिंग या पाइपेराजीन हो, लेकिन वो रिंग्स लगाने से हमने देखा था कि 7th पोजीशन पे रिंग लगाने से बेटर कंपाउंड्स वर डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता चलता है, 7th पोजीशन का तो हो गया। Piperazine at position 7 showed improved activity against gram-negative bacteria। फ्लोरीन 6 पे ये तो डन बात हो गई। 8 पे क्या हुआ, 8 अब दोबारा से, अब आखिरी बार एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं पूरा। ठीक है, अब जरा गौर से सुन लो बेटा। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन में पोजीशन 1 पे तो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन नहीं हटेगा। पोजीशन 2 पे एसिडिक ग्रुप है, वो भी नहीं हटेगा। पोजीशन 3 पे कीटोनिक ग्रुप है, वो भी नहीं हटेगा। ठीक है, एंड यू कैन नॉट एड एनी अदर ग्रुप एट पोजीशन 2 3 4। अब देख लो 2 3 4 पे, दीज आर 2 3 4 2 3 4, यहाँ पर किसी किस्म की कोई सब्सटीट्यूशन नहीं की गई है, कोई एडिशन नहीं की गई है। तो पोजीशन 2 3 4 पे कुछ नहीं लगाना। हाँ, पोजीशन 1 जो नाइट्रोजन है वहां यू कैन अटैच अ ट्राईसाइक्लिक और हेक्सासाइक्लिक, कोई भी आप रिंग लगा रहे हो, उससे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आ जाता है पोजीशन 6 7 8। 6 पोजीशन पे हमने फिक्स कर दिया है फ्लोरो ग्रुप, वो फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए मस्ट है, वो भी हटा दो। अब आ जाता है 7 और 8। 7th पोजीशन पे अगर आप कोई रिंग अटैच कर रहे हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, चाहे वो 5 मेंबर्ड है चाहे वो 6 मेंबर्ड है, ठीक है, दैट इज गिविंग अ कंपाउंड विद बेटर विद इम्प्रूव्ड एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी उसकी अच्छी होगी अगर आप 7th पोजीशन पे कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग लगा रहे हो। ये चीज क्लियर हो गई है हमें। ठीक है, अब आ जाओ फाइनली पोजीशन 8 पे। पोजीशन 8 के बारे में कहा गया था कि पोजीशन 8 पे पहले क्योंकि फ्लोरो ग्रुप अच्छी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दे रहा था, तो एक और फ्लोरो ग्रुप लगाया गया एट पोजीशन 8। पोजीशन 8 पे फ्लोरो ग्रुप लगाने से एक्टिविटी इनहांस हुई, लेकिन साथ में फोटोटॉक्सिसिटी का साइड इफेक्ट भी आया। तो फिर फ्लोरो ग्रुप हटा के
यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाया गया, और जब मिथॉक्सी ग्रुप लगाया गया तो ये पता चला कि मिथॉक्सी ग्रुप इज गिविंग द कंपाउंड विथ नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी। अब कुछ समझ आ रहे हैं? ठीक है, तो अब इससे ये हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ पर कौन सा ग्रुप लगाना है और कौन सा ग्रुप बेहतर रिजल्ट दे रहा है। अब ऑफ कोर्स अब जो नई मार्केट्स में ड्रग आएंगी वो किस पोजीशन पे, अब आप लोग अगर मैं गेस करने को कहेंगे तो आप कहोगे कि भाई एट पोजीशन 8 यू कैन ऐड डिफरेंट। अब एक है, अगर आप हेटेरोसाइक्लिक लगाते हो, एक से ज्यादा दो एरोमेटिक रिंग लगा रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो क्या एक और बेहतर रिजल्ट आएगा? हो सकता है आप इसके लिए तैयार रहो। इस तरह की भी मार्केट्स में ड्रग्स आएंगी। गेटी और मॉक्सी इसीलिए आई थी ना, ये इन्होंने यहाँ पर मिथॉक्सी लगाया, जहाँ पर वो फोटोटॉक्सिसिटी बिल्कुल खत्म हो गई और एक्टिविटी भी इनहांस हो गई। सही है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएआर? फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब आ जाओ सी क्लासिफिकेशन पे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 जनरेशन है। अभी 5वीं जनरेशन का मैंने इसने बताया था कि मैंने कहीं यही देख रही थी तो उस पर देखा था कि JNJ Q2 के नाम से आया हुआ है कि 5th जनरेशन आ चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है, वो मुझे नहीं पता। एवारोफ्लॉक्सासिन के नाम से, इसके डिफरेंट नाम है, इसको एलर्जिन भी कह रहे हैं, NJ के नाम से भी है, JNJ के नाम से भी है, लेकिन बहरहाल एवारोफ्लॉक्सिन, राइट, हाँ यही मैंने देखा है कि एवारोफ्लॉक्सिन इज द 5th जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन। स्किन इन्फेक्शन इन्फेक्शन के लिए है, बहुत अच्छी है। हाँ यकीनन ये जो 5th जनरेशन जो आएगी इसकी तो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि एक बार इनको ये पता चल जाए ना कि कहाँ पर किस ऐसे यार पता चल जाता है, तो फिर वो उसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही काम करते हैं। मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना होगा, वो जो है एवारोफ्लोक्सिसिन का स्ट्रक्चर क्या है। क्या यहाँ पर भी इन्होंने एक पोजीशन पे कोई रिंग लगाया है और मिथॉक्सी के साथ होगा, जहाँ तक मुझे पता है। बहरहाल हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। अच्छा जी, पहली है फर्स्ट जनरेशन नैलोडेक्सिक एसिड, सबसे पहली जो आई थी निग्राम के नाम से। सही है। ये जो है इट वाज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मिस है पोजीशन नंबर 7 पर चेंजेस किए हैं, मिथॉक्सी की है पोजीशन 7 पे चेंजेस किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसका स्ट्रक्चर देखिए, नेट पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं 7th पोजीशन का, मुझे भी देखना है कि इसमें 7th पोजीशन पे किया गया है ना। थैंक यू बेटा सामा रजा। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम हाँ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है नैलोडेक्सिक एसिड। ठीक है, इट इज एक्टिव, दीज फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स वर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुडोमोनास ऑर्गेनोसा के अगेंस्ट इसकी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड पे जो आया था सिप्रो लीवो इनो इनॉक्सो सॉरी ओ फ्लॉक्सासिन नॉर फ्लॉक्सासिन। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट हो गया था, देवर एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोना एरोगेनोसा। ये बेसिकली ज्यादातर ग्राम नेगेटिव लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इनकी एक्टिविटी थी, लेकिन ज्यादा इनकी ग्राम नेगेटिव की। एक्चुअली ये जो मैंने फिगर उठा के बस लगाया था यहाँ पर क्लासिफिकेशन का, यहाँ से ये कह रहा है ग्राम पॉजिटिव लेकिन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी है लेकिन उतनी नहीं है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो शोड एक्टिविटी अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एंड सुडोमोना एरोगेनोसा।
उसके बाद आ जाता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ऑलमोस्ट सेम थी सेकंड जनरेशन से, लेकिन यहाँ पर निमोनिया जो है ये it showed promising effect for the diseases like chronic bronchitis or pneumonia.